Good afternoon, student. Today we will discuss about the chapter Fire, Friend, and Foe. And yesterday I explained the chapter The Invention of Vita Bombs and question answer also. And the second chapter that is very important for unit third is Fire, Friend, and Foe. And at first I explain the summary of the chapter. So let's start. Early man and fire. Early men must have found fire to be dangerous and frightening. Fire must have been a mystery for an early man. What it is none today that it is a result of chemical reaction. When oxygen present in air combine with carbon and hydrogen present in a fuel, energy is released in form of heat and light, and this is what fire is. Okay, to make fire, fuel, heat and oxygen is needed. Wood, coal, gas are fuels. Oxygen is available in air. What to cause fire, heat is essential. A piece of paper doesn't catch fire until that is supported to it. Every fuel burns at a particular temperature, which is also called flash point or kindling temperature. Every fuel, you know very well that every fuel has a particular temperature, which is we call that flash point. Fire, a friend and a dangerous enemy. Fire is born if it kept under control. What can be dangerous if it goes out of it? It is used in our house daily for cooking food, burning candles, and so on. What if it goes out of control? Out it become out of control, then it cause damage to life and ruin our life, house, and even forest. You know very well in previous time a fire caught in England and many of the forest for many days the fire is going on. No one will put off the fire. Fire can be controlled by taking away any three of things required for burning it. It can be stopped immediately by taking away the fuel. It can also be controlled by cutting the oxygen supply. For this, many a time blankets are thrown over burning object. Another way is to reduce the flash temperature. This can be done by spraying water which lower down the temperature. However, water can't be used to put out an electric fire or an oil fire. Carbon dioxide extinguisher is a best way to control electrical fire. And to control the fire, firefighter plays an important role. Firefighter. Earlier people used to form human chains and pass bucket of water from pond of well to the blaze. These days there are trained personnel to handle this. The trained team of firefighter is called fire brigade that you know very well. They are skilled people to handle all kinds of fire. They have the knowledge of first aid as well as or the able to provide immediate help to people suffering from burn injury or from the effect of the smoke. Discovery of fire has been a great boon to mankind. Fire is worshipped as God in many cultures around the globe.
It is a dear friend if can be used properly, what can turn danger if goes up control. It become out of control, the fire harms a lot. If we use fire as a good servant and a bad master, we use fire as a good servant, we use fire as a servant. It is very helpful for us. It cook our food, it's warm our room in winter. It give a lot of luxury for our life. But as a bad master, we use fire, fire ruin us our life when the fire become out of control. Okay, अब in Hindi I explain this chapter. आदि मानव मतलब पुराने जमाने में जो आग थी बहुत डरावनी और खतरनाक रही होगी पुराने जमाने में, क्योंकि वहाँ कोई भी कंट्रोलर नहीं था। कोई भी जैसे आज के ज़माने में फायर फाइटर होते हैं कि कहीं आग लग जाए तो फायर फाइटर आ जाएंगे तो फायर ब्रिगेड आ जाएगी, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। जो आग थी उनके लिए एक रहस्य रही होगी, एक मिस्ट्री रही होगी। लेकिन आज की तारीख में हमें पता चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन है, जो कि वायु में एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन जब ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा और प्रकाश व आग के रूप में बाहर आती है। आग जो होती है उसे जलाने के लिए ईंधन, हीट, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लकड़ी, कोयला और गैस इत्यादि ईंधन है, ये फ्यूल्स हैं जो कि हवा में एयर में ऑक्सीजन उपलब्ध है। ऑक्सीजन तो फ्री है जो हम लेते हैं सांस, पर आग पैदा करने के लिए जो गर्मी की आवश्यकता होती है, हीट की जो आवश्यकता होती है, जैसे एक कागज का टुकड़ा है तब तक आग नहीं पकड़ता जब तक कि इसे आग ना दी जाए। ये पॉइंट है। कोई भी कागज का टुकड़ा लो, पीस ऑफ पेपर, व्हेन सपोज दैट वी टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड द पीस ऑफ पेपर टिल नॉट कॉट द फायर, व्हेन द वी कांट गिव हिम फायर, जब हम उसे फायर देते हैं तभी वो कब मीन उसमें आग लगती है। प्रत्येक जो एवरी फ्यूल हैज़ अ सिमिलर टेम्परेचर, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर, उसका तापमान तय होता है जिसे आग को पकड़ने में हेल्प मिलती है। अब एक फ्रेंड, ये बात हुई थी कि फायर इज अ गुड फ्रेंड बट अ बैड मास्टर। इसे काबू करने के लिए ये भी चीज़ है कि जब तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि खाना बनाने में, कुकिंग फूड अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, घर में खाना बनाने में, ठंडों में विंटर को अपने रूम को कोल्ड कोल्ड रखने में इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैनी यूजेज वी डिस्क्राइब इन द क्लास, बट हियर वी आर डिस्क्राइब फ्यू ऑफ देम। एंड इसके बहुत ही एक हमारी एक अच्छी सर्वेंट है, अच्छी मित्र है। लेकिन जब बैड मास्टर है, जब ये बेकाबू हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो ये कई ऐसी चीज़ों को तबाह कर देती है जिसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है। जैसे इंग्लैंड में कोई जगह पे आग लगी थी जंगलों में, तो काफ़ी दिन हो गए आग नहीं बुझी। मैनी डेज, बहुत दिन तक आग वो चलती रही, तबाह हो गया, कई चीज़ वहाँ के नष्ट हो गई। तो बस यही इसकी समरी है। और नाउ आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो कुछ सेंटेंस दिए हैं उसमें जो सेंटेंस आपको सही लगे उस पर आप मार्क करना है। ए, अर्ली मैन वाइल फ्रैटेंड ऑफ, जो पहले का आदमी था वो डरता था, फ्रैटेंड ऑफ लाइटिंग वॉल्केनो से डरता था, लाइटनिंग ऑन वॉल्केनो, दैट डैमेज कॉस्ड बाय देम, या फायर। तो किससे डरता था? आंसर है द अर्ली मैन फ्रैटेंड ऑफ फायर। द अर्ली मैन वाई फ्रैटेंड ऑफ फायर, आग से डरता था। सेकंड क्वेश्चन, फायर एक एनर्जी है, फायर हीट और लाइट है, या फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन? फायर रिजल्ट है केमिकल रिएक्शन का। तो द राइट आंसर इज लास्ट सी, द फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर द फॉलोइंग सेंटेंस। इनका जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या होगा फॉलोइंग सेंटेंस का? ये 4 सेंटेंस दिए हैं, तो फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, सबसे पहले को क्या आएगा? तो वो सेंटेंस आई एक्सप्लेन। फर्स्ट इज दैट इज फायर।
Second, a chemical reaction takes place. Third, energy in the form of heat and light is released. And fourth, oxygen combines with carbon dioxide and hydrogen. तो जब आंसर ये सीरीज दी है कि पहला है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड है सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, फिर है फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, एंड लास्ट वाला है फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट. तो द आंसर इज करेक्ट इज फोर्थ. पहले सबसे पहले फोर्थ आएगा. क्या है? ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन एंड हाइड्रोजन. फिर सेकंड आएगा अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. फिर थर्ड आएगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज. फिर फर्स्ट आएगा दैट इज फायर. ये फायर की डेफिनेशन है कि फायर किस तरीके से बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you understand why the flash point of a fuel. कि आप जो फ्यूल होता है, कोई भी फ्यूल हुआ उसका फ्लैश पॉइंट क्या होता है. एंड आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन समरी व्हेन आई एक्सप्लेन इंग्लिश समरी में, तभी एक्सप्लेन करा था आपके लिए कि द टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल बिगिन टू बर्न इज कॉल्ड इट्स फ्लैश पॉइंट. जिस टेम्परेचर पे कोई भी फ्यूल होता है वो जलना शुरू होता है तो वो ही उसका फ्लैश पॉइंट होता है. ओके, अगेन द टेम्परेचर at which a fuel begin to burn is called a flash point of the temperature. Now we go to the second question. Second question is divided in two form, the first and second. The first is what are some common use of fire. कि फायर के क्या कॉमन यूज हैं. ओके, द आंसर इज सम ऑफ द कॉमन यूज ऑफ फायर आर टू कुक फूड, खाना बनाने में, वार्म द होम, कमरे को गर्म करने में, इन विंटर स्पेशली, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, पैदा करने में बिजली. सम ऑफ द कॉमन यूज ऑफ फायर आर टू कुक फूड, वार्म द होम इन विंटर, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट सेंस इट इज द बैड मास्टर. कि हमने ये पढ़ा था कि अभी हमने समरी में एक्सप्लेन हुआ था. नाउ वी एक्सप्लेन कि वाई व्हाट इज, मतलब फायर इज अ गुड सर्वेंट, व्हाट अ बैड मास्टर, इन विच मेथड फायर इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, एंड विच वे द फायर इज वेरी डेंजरस फॉर अस. तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है किस सेंस में ये बैड मास्टर है. तो लेट्स सी द आंसर. It is a bad master because if it is not kept under control. अगर ये अंडर कंट्रोल में से नहीं रखा गया तो इट कैन प्रूव वेरी डेंजरस. तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी, डेंजरस हो सकती है. ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम आर शॉप आर डैमेज बाई फायर. हर साल आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि कई घर, कई दुकानें आग की चपेट में आ गई, आग से तबाह हो गई. वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो, और एरिया भी. अब जैसे वो आता है, समर आती है, तो द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकम रिड्यूस, कम हो जाती है. वाई? क्योंकि मोस्ट ऑफ द, मतलब जब दोपहर में पैसे भी हीट होती है, सन्स की हीट होगी, एंड जो फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, उनमें फसल तैयार होती है, क्रॉप रेडी होती है, और उनके ऊपर से तार जाते हैं. अगर वो लाइट अगर कंटिन्यू रही उस समय दोपहर में, आफ्टरनून टाइम में, तो कहीं तार टूट गया तो कई आग, उसकी इलेक्ट्रिसिटी हुई है फायर, तो उसकी आग से एक लोग, मतलब पूरी फसल नष्ट हो जाएगी. इसलिए आपको मतलब यू गेन लेस इलेक्ट्रिसिटी इन समर स्पेशली. नेक्स्ट क्वेश्चन, come to the point. I repeat the bad master. It is a bad master because it is not kept under control. It can be proved very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast area of forest are also destroyed, and hundreds of people are killed or injured हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी में. यहाँ पे आप एक पैरा दिया है, मतलब एक ब्रैकेट में एक वो दिया है,
उसमें एक तरफ फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट लिखा हुआ है और इसको आपको मैच करना है सेकंड वाले से कि क्या क्या इसमें होगा इसका आंसर। तो देखें, फ्यूल में कोयल, वुड, कुकिंग, गैस, एयर, लाइटिंग। ऑक्सीजन, मैच स्टिक, बर्निंग कोल और स्मोल्डरिंग, एंड हीट पेपर। नाउ लेट्स discuss about the next question. Question 4. What are the three main ways in which a fire can be controlled or put out? What are the three main way? वो कौन से तीन तरीके हैं in which जिससे a fire can be controlled हो सकती है और बुझ सकती है। फायर पे कंट्रोल किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है बुझने से। तो फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट बाई टेकिंग अवे वन ऑफ थ्री थिंग्स required for burning. The first way to take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. The second way is to prevent oxygen from reaching it. A small fire can be put out with a damp blanket or sack. This stops oxygen from reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used for extinguishing fire. The third way of putting out a fire is to remove the heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. Blowing on a burning matchstick or candle remove on a hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. Sometimes water is sprayed on fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers of the temperature. It also cuts off the supply of oxygen and therefore fire is extinguished. Fire can be controlled or put out taking away one of the three means required for burning. हम तीन चीज़ों से फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं। For the first, at first we are discussing that the first way to take away the fuel, if the fire has no fuel to feed on, the burning can, इसका फ्यूल कम कर देंगे। जब फ्यूल ही नहीं होगा तो आग नहीं जलेगी। सेकेंड वे टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम द रीचिंग इट, इसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचनी चाहिए, रोकना है। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट विद अ डैम्प ब्लैंकेट सैक, कोई छोटी जगह आग लगी हो जैसे तो उसके गीला कंबल होता है, गीला कोई भी ब्लैंकेट होता है, सैक से होता कट्टा होता है, उसे गीला करके डाल देंगे उस पर, तो फायर वहाँ से बंद हो जाएगी, यूज हो जाएगी। इससे मेन चीज़ है ऑक्सीजन नहीं मिले उससे। दिस स्टॉप, जैसे कहीं भी सिलेंडर में कहीं आग लग जाती है तो हम लोग कैसे कि भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। या तो एक कोई भी वो ले लिया, जैसे कोई कंबल है उसे गीला कर लिया, कोई कट्टा है उसे गीला करके उसे ढक दिया, उसे मतलब एकदम वहाँ पे एयर नहीं पहुँचे इस तरीके से उसे कर दिया। एंड सेकंड में कोई बाल्टी ली लोहे की, उसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर रख दी, मतलब ऑक्सीजन वहाँ से अंदर उसके नहीं पहुँचे, तब हवा अपने आप पुट आउट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एंड the second way to prevent oxygen from reaching it, and a small fire can be put out with a damp blanket and sack से हो सकता है। this stop oxygen from the reaching the burning material, ऑक्सीजन बिल्कुल रुक जाएगी तो कोई भी चीज़ जले फिर आग जलेगी नहीं। sometime कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द एक्सटिंग्विश फायर, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत अच्छा एक्सटिंग्विश आग को बुझाने का काम करती है, ख़त्म करने का काम करती है। हमने ये वीडियो में भी बात कही थी कि या कहीं भी कोई टुकड़ा है या पीस ऑफ पेपर है उसको भी जलाने के लिए हमें उसके पास आग पहुंचाना पड़ती है, अगर रखा रखा नहीं जलेगा। तो वही बातें यहाँ हो रही हैं। द थर्ड वे, सेकंड तरीका हो गया, थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज टू रिमूव द हीट, हीट को रिमूव कर देना है। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्राउट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, अगर उसका टेम्परेचर कम चला गया फ्लैश पॉइंट से, then the full stop burning, blowing on a burning matchstick candle and remove the hair tear around the flame, bringing down temperature below the flash point, flash point कम हो जाएगा। sometime water is
स्प्रेड ऑन द फायर, कभी कुछ कुछ टाइम वाटर को भी स्प्रेड कर सकते हैं फायर में. इट ऑब्जर्व द हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर. इट आल्सो कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड देयरफॉर फायर इज extinguisher. And the same work the extinguisher will be do in the when is anywhere somewhere the fire is caught, the any we call the fire brigade, and the expert will come at home, and they will put off the fire because they were expert to put out the fire. So then the next question we will discuss about the, यहाँ पे फिर मैच द आइटम फॉर ए, सब बॉक्स बीच में है. बॉक्स ए में comes है to burn paper or piece of wood. A small fire can be put out when water is sprayed on fire. Fourth, a carbon dioxide extinguisher is the best thing. And fifth, space left between building. And B, it observe heat from the burning material and lower the temperature, reduce the risk of fire. With a damp blanket, we heat it before it catch fire to put on electrical fire. द आंसर है, इसको मैच करना है तो सबसे पहला फर्स्ट है टू बर्न पेपर और आ पीस ऑफ वुड, इसका होगा बी हीटेड बिफोर इट कैच फायर. सेकंड, स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट, आंसर विद अ डैम ब्लैंकेट. ओके, स्मॉल छोटी अगर कहीं आग लगी होगी तो उसे कैसे बुझा सकते हैं, गीले ब्लैंकेट से, कंबल से. व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, it observes heat from the burning materials and lower the temperature. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to put out the electric fire. Only carbon dioxide will be used in the best thing to put out the electrical fire. And space left between building reduce the risk of fire. Okay, मैचिंग कंप्लीट हो गई. Now we will discuss the question 6. Question 6. Why does a burning candle go out when you blow on it? Why does a burning candle, एक जलती हुई मोमबत्ती क्यों बुझ जाती है जब हम उसे फूंकते हैं? एक जलती हुई मोमबत्ती बर्निंग कैंडल क्यों गो बुझ जाती है जब हम उसे फूंकते हैं? बताइए, टेल मी द आंसर. तो द आंसर, a burning candle goes out when we blow on it because blowing removes the hot air and around the flame, bringing down its temperature below the flash point. Means जब अब बर्निंग कैंडल को बुझ जाती है जब हम उसे फूंकते हैं, बिकॉज क्योंकि जो ब्लोइंग रिमूव द हॉट एयर, रिमूव हो जाती है हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, आग के चारों तरफ से, ब्रिंगिंग डाउन इट टेम्परेचर बिलो, और इसका टेम्परेचर नीचे आ जाता है, द फ्लैश पॉइंट का टेम्परेचर नीचे आ जाता है इसके फ्लैश पॉइंट का. For the my dear student, come to the point that we are discussing about the question why a burning candle go out when you blow on it. So the answer is the burning candle go out when we blow on it because the blowing reason remove the hot air for around the flame and bringing down its temperature below the flash point. The next question is spraying water is not good way of putting out of oil fire and electric fire. Why not? मीन्स जो स्प्रेइंग वाटर होता है इधर नॉट अच्छा तरीका नहीं है पानी को मारना, पुटिंग आउट द ऑयल एंड फायर, इलेक्ट्रिक फायर, अगर कहीं आग लगी हो इलेक्ट्रिकल फायर एंड वी आर यूजिंग वाटर, स्प्रेइंग वाटर इज नॉट वे, तो वाई नॉट, क्यों नहीं? इफ आंसर इज इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन ऑयल फायर देन द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. In case of an electrical fire, the person spray water might receive an electric shock and be killed. Therefore, spraying water is not a good way of putting out oil fire or electrical fire. हम इसका यूज पुटिंग वाटर का बहुत नॉर्मल सी कहीं आग लगी हो उस पर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बड़ी आग में स्प्रेइंग वाटर इज नॉट गुड वे टू पुटिंग आउट ऑयल फायर एंड इलेक्ट्रिकल फायर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट आर सम ऑफ द थिंग यू शुड डू प्रिवेंट टू फायर एट होम एंड द स्कूल। वो कौन सी चीज़ें हैं, व्हाट आर समथिंग जैसे आपको करनी चाहिए आग को रोकने के लिए, चाहे वो घर पे हो आप या स्कूल में हो, कहीं आग लग जाए तो वो कौन सी चीज़ें हैं। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड you to use your own practice as well as your own analysis skill. The answer to the question would vary from one person to another. ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का आंसर है। इसकी आपकी पर्सनल थिंकिंग होगी कि आपको कैसे आपको यूज़ करना है, बिकॉज एवरी मैन हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू अदर मैन। हर आदमी दूसरे आदमी से उसका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये आपका चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको खुद लिखना है कि आपके कहीं घर में आग लगी हो, सपोज दैट कहीं स्कूल में हो, तो आप उसको कैसे कम करेंगे, किस तरीके से। ओके, नेक्स्ट आई सेल टीच यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो।